Thank you. Political थोड़ी नहीं. Question 181. 181. Is having a problem because it's such a wide-ranging ordinance. Therefore, sir, it is impossible to deal with the whole issue within 5 working days. Sir, we would urge upon you, sir, to reconsider this and to the August House that this should be extended at least till the first day of the meeting of the House on 20th April. Sir, it is very Select committee important. matters are not discussed here. Once Sir, it the is very House has important. taken a decision to set up a select committee, it awaits the report of the select committee. Sir, I totally agree. Committee should function in a manner, sir. No, please. Its purpose is to go deep into the bill, sir. Please. We have not passed the necessary witnesses, sir. No, this is to be, Stakeholders are Sir, it's a very wide-ranging bill, a very wide-ranging ordinance. just 1 minute. Sir, it can't be completed. Digvijay Singh ji, 1 minute. Can I say something? Please sit down. Let me say something on this. Please sit down. Mr. Tiruchi Siva, please. The House took a decision to set up a select committee. The select committee is master of its own procedure. After the House has set up a select committee, it awaits the report of the select committee. What is done inside the select committee cannot be the subject of a discussion here. It is extremely difficult to complete the work, and that is what we are saying. 1 minute, let's hear the Honorable Minister. Just 1 जिस minute. वक्त सेलेक्ट कमेटी का बनाई गई, जिस वक्त सेलेक्ट कमेटी बनी, उस समय सभी पार्टियों के माननीय सदस्य उसमें सदस्य हुए और उस समय 18 तारीख तक सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, ये बात चेयर की तरफ से अनाउंस की गई और जिसे सबने स्वीकार किया कि 18 तक, इसी महीने की 18 को तक जो है वो सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट देनी है। दिन नहीं था उसमें, ये नहीं था कि 6 दिन 7 दिन 8 दिन, 18th of this March. Thank you. Please, no. Honorable members, please. Sir, we agreed to that, sir, earlier. No, please, there is a procedure. The committee is master of its procedures. If the committee has a view, then committee as a committee can come to the chair, but individually it cannot be taken up. But the House can extend the I'm afraid I can't take a position on that. Honorable Chairman, sir, to call both the chairmen of the select committees and at least take their views. The fact remains, it has a wide-ranging impact. The views of the state government were not taken. The views of the Labour Ministry was not taken. The views of the Tribal Ministry was not taken. The views of the Consumers Ministry was not taken. The views of the Panchayat under PESA was not taken. And the ordinance was drafted in an absolute hurry. So therefore, honorable sir, members, we need cannot go into the talk to merits the of this. stakeholders until the... I'm afraid Sir, we cannot I'm discuss afraid the we cannot working go of the into select the committee in merits this house or without demerits the of it report of here. the select committee. Sir, select committee की रिपोर्ट से पहले हम select committee की जो वर्किंग है वहां पर मीटिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते. Let question 181 be answered, Mr. Bhupendra Yadav. जवाब दे What is the, what, we don't take points of order during question hour. Sir, time for the presentation of the report by the select committee be extended to a date specified. Yes, sir. Please, sir. So the House can, sir, if you kindly, sir, please. Sir, if a report is to be complete, sir. Look, we have please, to hear Mr. all the Tiruchi stakeholders, sir. Siva, this is the question hour. We don't take up any other matter during question hour. If you have anything to say on the subject, not during this hour. Thank you very much. Question 181. Sir, question 181, sir.
Has it been answered? Yes, sir. एक उत्तर सदन के पटल पर रखा है सभापति महोदय। Supplementaries, please. सर, अपने प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने ये अंतिम पैरे में लिखा है, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था, सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने की विचार रखती है। उन्होंने जवाब में कहा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य प्राधिकरण को प्रदूषक में भुगतान करने के सिद्धांत की संकल्पना के अनुसार किसी प्रकार का वित्तीय जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न में ये जवाब नहीं आया है कि सुधारात्मक उपाय क्या है, क्योंकि गंगा के संबंध में हम ये मानते हैं कि गंगा केवल निर्मल नहीं होनी चाहिए, गंगा अविरल भी रहनी चाहिए। उसका सतत प्रवाह जो है वह भी उसके पर्यावरण की शुद्धता को बढ़ाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों को और विचारों को अगर वो स्पष्टता से बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Thank you. माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उस प्रश्न के दो हिस्से हैं, जिसमें एक है कि हम आगे जो हमने उत्तर दिया है कि हम कुछ सुधारात्मक उपायों की दिशा में कुछ निर्णय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो विचार क्या है, और दूसरा है कि निर्मलता को बनाए रखने के साथ ही साथ अविरलता के बारे में भी हम क्या विचार कर रहे हैं। एक समिति जल संसाधन मंत्रालय में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें अन्य संबंधित विभाग हैं और जो एक ऐसे एक्ट पर विचार कर रहे हैं जो समग्रता के साथ में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों का समाधान कर सकें, जिसका प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने में भी एक भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो इस पर विचार कर रही है कि पर्यावरण से संबंधित और प्रदूषण से संबंधित अभी तक के जितने भी एक्ट हैं उनको प्रभावी तरीके से किस प्रकार से लागू किया जा सके आगे भविष्य में। इसके लिए दो समितियां बनी हैं और ये बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। ये मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। दूसरा जो उन्होंने प्रश्न किया है, एक सवाल का दूसरा सवाल आप पूछ लें। आप एक सवाल का आपने जवाब दे दिया, अब दूसरा सवाल दूसरा हमने कर लिया था सभापति महोदय, पहले ही तो कर दोनों लिया। साथ ही कर लिए आपने? हाँ, साथ कर लिए। तो इसके बाद दूसरा सवाल नहीं होगा ना प्लीज। दूसरा भी आना देखिए, है। एक का जवाब आपने दे पूरा नहीं आया दिया, सर। अब आप उनका दूसरा सवाल सुन लीजिए। सर, मैंने जो प्रश्न किया था, मैंने ये कहा था कि सुधारात्मक उपायों पे जो विचार किया जा रहा है कि सुधारात्मक उपायों की समय सीमा के साथ जो अविरलता और निर्मलता का जो प्रश्न है, जो मूल गंगा का प्रश्न है कि गंगा अविरल बहनी चाहिए, गंगा निर्मल भी रहनी चाहिए, तो उस संबंध में क्या व्यापक रणनीति है, क्या योजना है, क्या समय सीमा है, ये मेरा मूल प्रश्न था सर। निर्मलता के बारे में जैसा कि माननीय सभापति महोदय मैंने बताया, मैं फिर से और उसी प्रश्न के दोबारा पूछे जाने पर और थोड़ी जानकारी दिए देती हूँ। सितंबर 2014 में हमने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के गंगा के किनारे की सभी 764 इकाइयों की, जिसमें गंगा, काली और रामगंगा, जो कि मुख्यतः गंगा को प्रदूषित करने वाली दो नदियां हैं, उनके किनारे के उद्योगों को बुलाया था और उनसे हमने चर्चा की थी। उसके बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को हमने एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सभापति महोदय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है, उनका एक स्वतंत्र संगठन है। उनको हमने कहा है और 31 मार्च तक वो उन उद्योगों पर एक मॉनिटरिंग प्रणाली को लागू करेंगे कि कितनी औद्योगिक इकाइयाँ किस प्रकार से प्रदूषण कर रही हैं, और फिर हमने तय किया है कि 2016 तक इन पर कार्यवाही होगी और इनको जो इकाइयाँ हमारे निर्देशों का पालन करके चलेंगी उनको, और जो निर्देशों का पालन नहीं करेंगी फिर उन इकाइयों को बंद करने का फैसला लेने तक की स्थिति अभी तक के जो एग्जिस्टिंग एक्ट हैं उनके अंतर्गत लिया जा सकता है। ये निर्मलता के बारे में हमारा फैसला है। ये जब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के हमने प्रदूषित करने वाली इकाइयों की, औद्योगिक इकाइयों की बैठक बुलाई थी, तो उसमें हमने स्पष्टतः कहा था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको निर्देश दिया है कि गंगा और उसकी जो सहयोगी नदियां हैं उनको पूर्णतया प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, और इसलिए इसी बारे में हमने कठोर कदम उठाने का फैसला लिया। इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने अविरलता के संबंध में पूछी है, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि ये अभी तक जो पूरे संसार में विचार हुआ है जल के शुद्धता के संबंध में, उसमें अविरलता का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिवों की एक समिति बनी है, जिसमें कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी भी जिसके सदस्य हैं,
और किस नदी में कितना प्रदूषण है और उस प्रदूषण से संघर्ष करने के लिए उस नदी का वेग कितना होना चाहिए, इसके बारे में वो IIT कंसोर्टियम, चतुर्वेदी कमेटी और रवि चोपड़ा कमेटी जिन्होंने पूरी तरह से गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की नदियों का अध्ययन किया हुआ है, उसके निष्कर्ष के आधार पर हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद में अविरलता के बारे में जो फैसला होगा वो हम तय करेंगे। ठीक है, श्री शरद यादव। सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अलकनंदा पर लाटा तपोवन में 100 मेगावाट, ये हिमालय के भीतर है। विष्णुघाट पीपल कुटी 444 मेगावाट, अलकनंदा बद्रीनाथ 300 मेगावाट, सिंगोली भटवाली 99 मेगावाट, फाटा व्युंग 77 मेगावाट और कोट भीले लीभेल आदि पर 1000 मेगावाट। ये इतनी योजनाएं, लखवाड़ ब्यासी पर 420 मेगावाट। मैं सर आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गंगा के मुहाने पे ही ये कच्चा पहाड़ है हिमालय, और ये सारे मामले आपके जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट में किस तरह कलाबाजी कर रहा है, ये इससे पता चलता है कि गंगा के बारे में कितने गंभीर हैं आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गंगा के जो ये उत्तराखंड से नदियां हैं अधिकांश, इनके अंदर जो बांध बन रहे हैं वो सब के सब गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। आप ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस मामले में जो आपने पूरे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लगातार बदलने का काम किया है, और ये जो है वो ठेकेदार और पैसे वालों के दबाव में आप लोग इन सब चीज़ों को लगे हुए हैं। एनवायरनमेंट का जो तरीका है आपका, जो वहाँ वकील खड़ा होता है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 1% बिजली है पूरे देश की, क्यों इस देश का नाश कर रहे हो, क्यों गंगा का सर्वनाश कर रहे हो, उसके पेट में ही उसको जन्म में ही उसको मार देने का काम कर रहे हो। और इस पर जो है वो मैंने पहले भी आपसे पूछा था, और ये आपके हाथ में नहीं है। इतनी मिनिस्ट्री है ये, और इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसमें बहुत तरह से वो है नहीं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, लेकिन ये सवाल जो है वो आपको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो इस देश का बहुत सर्वनाश होगा। थैंक यू सर जी, और गंगा का भी सर्वनाश होगा। थैंक यू। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वो पूरे देश की चिंता है जो उन्होंने अपने सवाल के द्वारा व्यक्त की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा से एक कमेटी बनी जो इस पर विचार कर रही है, और उन्होंने अपना भेज दिया है जो उन्होंने विचार किया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जिसमें हमारे मंत्रालय के संबंधित विभागों के CWC के भी कुछ अधिकारीगण उसमें थे, और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नामित भी थे। और वो इन पावर प्रोजेक्ट्स का जिनका माननीय सांसद जी ने नाम लिया है, उन सभी के बारे में एक ओपिनियन मांगी गई है, और वो ओपिनियन हमने माननीय न्यायालय के सामने पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की है। उसमें हमारे मंत्रालय की राय भी हमने व्यक्त की है। अब उस राय के बाद में ये पूरा का पूरा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता में सम्मिलित हूँ, और उसके लिए पूरा देश चिंतित है, और समाधान के लिए हमारी तरफ से जो निष्कर्ष हमें देने थे वो हमने माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। इस पर डिस्कशन नहीं होगा शरद जी, दूसरे सवाल भी हैं, प्लीज करना चाहिए। ये ऐसा सवाल नहीं है, ये गंगा का सवाल है जिसमें 50 करोड़ लोग लगे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिए जा रहे हैं वो बदले जा रहे हैं। जो कोर्ट ने ही इसमें स्टे लगाया था, और जो बड़ी भारी त्रासदी आई थी उसके बारे में सोचना गया था, और कमेटी ने रिपोर्ट भी हुई है। इसलिए ये अकेले आपका मामला नहीं है, गंगा का मामला एनवायरनमेंट से बाबत है, इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को आप ये कन्वे करेंगी। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, और उनकी चिंता बहुत गंभीर है, और मैंने पहले ही कहा कि देश की भावनाओं को वो चिंता व्यक्त करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम गंगा को अविरल और निर्मल करके दिखाएंगे। लेकिन जो पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र जिन्होंने उन्होंने किया, उन्होंने स्वयं ही उसका समाधान भी बताया अपने प्रश्न में कि ये अधिकतर मसला पर्यावरण मंत्रालय के पास है, लेकिन हम मिलकर के तय करते हैं। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं कि हम मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसलिए जो समिति गठित हुई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की है। अब माननीय न्यायालय के सामने पूरा मसला विचाराधीन है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को ये कह सकती हूँ कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और मंत्री के हैसियत से मैं स्वयं इस बात के लिए संकल्पबद्ध हूं कि हम गंगा को निर्मल और अविरल करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है। प्लीज दूसरे देखिए, वो बहुत सी स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है नरेश जी। देखिए वो, प्लीज 1 मिनट नरेश जी, प्लीज लेट मी रोटेट द क्वेश्चंस, बी फेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस। श्री बंदोपाध्याय। Strange situation, the polluters pollute the river and taxpayers pay for the cleaning of it. My question is, will the government consider amending the law to make the polluters to bear the whole or at least substantial part of the cost? Thank you. माननीय सभापति महोदय, 1985 से गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, फिर 2009 में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी और अब नमामि गंगे, इस तरह से क्रम चला है। जो स्टेट के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हैं, जो सेंटर के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, उसके अपने पास में पावर हैं और उस पावर में दंड के भी प्रावधान हैं, आर्थिक हर्जानों के भी प्रावधान हैं। अभी कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर आर्थिक हर्जाने लगे हैं, लेकिन अभी तक जो दंड के प्रावधान हैं वो पूरी तरह से किसी के ऊपर भी लागू नहीं हो पाए हैं। हम पहली बार कटिबद्ध हुए हैं। इन 29 सालों में लगभग 3000 करोड़ खर्चा हो चुका है गंगा को और उसकी जो 2 मुख्यतः सहयोगी नदियां हैं उनको प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का। अभी तक की जो स्थिति है वो गंगा के प्रदूषण को नियंत्रण करने के मामले में संतोषजनक स्थिति नहीं है। जो माननीय सदस्य ने कहा है, ये सच्चाई है कि हमें कठोर दंड के प्रावधान तय करने पड़ेंगे और 31 अप्रैल तक, जो मैंने अभी आपको पहले निवेदन किया है कि पर्यावरण मंत्रालय के अधीन प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। 4 मार्च को एक बैठक हुई थी, 31 अप्रैल तक वो दिशा निर्देश तय होकर के जारी हो जाएंगे और 2016 तक वो सारी औद्योगिक इकाइयां जो गंगा और उसकी सहयोगी नदियों को प्रदूषित कर रही हैं, या तो उनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा वो इकाइयां बंद कर देंगे। थैंक यू। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु। थैंक यू वेरी मंत्री जी से ये है कि मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े हुए क्लिनिक्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिनका मेडिकल वेस्ट कचरा वो बहा देते हैं गंगा के अंदर, कहीं मेडिकल वेस्ट डिकम्पोज नहीं होता। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस संबंध में आपकी क्या योजना है? सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत विषय विशेष पर बात की है, जिसको मैंने संपूर्णतया कह दिया है कि हमारा लक्ष्य है जिसमें फेज 1 2 साल, फेज 2 4 साल और अंतिम लक्ष्य अधिकतम 10 साल, जिसमें जितने भी प्रकार के प्रदूषण गंगा में जा रहे हैं या तो उनके संशोधन होंगे और संशोधित जल ही जा सकेगा, अन्यथा उन इकाइयों को हम बंद करने की दिशा में कदम उठाएंगे जो प्रदूषित करेंगी। जो एक पर्टिकुलर विषय पर मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा फेंके जाने वाले प्रदूषण के बारे में जो माननीय सदस्य महोदय ने कचरे के बारे में बात कही है, अब मैं उस पर्टिकुलर विषय का तुरंत तो जवाब देने में अक्षम हूँ, क्योंकि मैं एक निष्कर्ष के तौर पर लेकिन मैं उनकी चिंता से अवगत हो गई हूँ और इस विषय पर अगर वो और जानकारियाँ कुछ चाहेंगी और किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर उनके मन में सवाल हो वो भी अगर चाहेंगे तो मैं जवाब बाद में दे सकती हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल। क्वेश्चन 182, questioner not present, let the answer be given. A to D, a statement is laid on the table of the House. Supplementaries, Shri Premchand Gupta. ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुआ और 1 अक्टूबर 2014 को बंद कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया।
तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाली नाम बदलने से कुछ इसमें अचीवमेंट होगी या क्या? श्रीमान जी, 2 साल के समय में ये झारखंड राज्य के विषय में सवाल है। अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन 1.5 लाख के आसपास बनाए गए और स्कूलों में तकरीबन 1200 स्कूलों में भी टॉयलेट का प्रावधान किया गया। आंगनवाड़ी में भी 1000 यूनिट्स के आसपास आंगनवाड़ी इसमें प्रावधान किया गया। तो इसको और तेजी से कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसमें क्या एमपी फंड्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है मान्यवर? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और माननीय मंत्री जी खुद गांव से आते हैं, ये तो गांव की समस्या समझते हैं कि ये कितना कठिन और कितना एक बहुत ही इनह्यूमन एक्ट है। इसके लिए आपकी क्या राय है और सरकार क्या एमपी फंड को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है मान्यवर? और थैंक यू। क्या नाम बदलने? थैंक यू। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने निर्मल भारत अभियान का नाम बदलने के लिए और ये जानने के लिए कि नाम बदला क्यों और उसके बदलने से क्या नई चीज़ होएगी और कैसे वो ज़्यादा लाभकारी होगा, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि ये सही है कि निर्मल भारत 2010 में अप्रैल 2010 में शुरू किया गया था और उस वक्त जो मिशन था वो कई संस्थाएं मिलके कर रही थी। मनरेगा का कोई कंपोनेंट भी उसमें शामिल था और सैनिटेशन का भी कंपोनेंट शामिल था और उसमें जो संस्थाएं जुड़ी हुई थी 10% तक उनका भी योगदान, कम्युनिटी जो लैट्रिन बनाई जाती थी उसमें भी उनका योगदान था। लेकिन 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में निर्मल भारत मिशन को ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम पे परिवर्तित किया गया और उसमें गांव को अलग और अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र हैं उनको अलग कर दिया गया। पहले सिर्फ 9,000 रुपये जो इंडिविजुअल लैट्रिन थी उसमें दिए जाते थे, उसको बदल के हमने 12,000 का प्रावधान किया, क्योंकि ये भी समझा जाता था कि 12,000 का प्रावधान आज भी बहुत सी राज्यों से ये बातें आई है कि ये इससे भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो 3 तरह की एजेंसियां मिलके फंड जुटाती थी, एक तो उनको अलग करके सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने ये फैसला किया और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये भी जैसे आपने कहा कि आंगनवाड़ी, ये चाइल्ड वेलफेयर और वुमेन वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो करेंगे, ये उसको हमने अपनी परिधि से बाहर कर दिया। और इसी प्रकार से जो स्कूल हैं वो शिक्षा विभाग द्वारा, चाहे वो लड़कियों के स्कूल हैं या लड़कों के हैं या को एजुकेशन है, वो स्कूल वहाँ प्रावधान करेंगे शौचालयों का बनाने का। तो इस तरीके से इसको 3 भागों में हमने बांट दिया। और जैसा कि आप ने कहा कि झारखंड में ये थैंक यू जो आंकड़े हैं उससे ये प्रतीत होता है कि झारखंड में निर्मल भारत मिशन कोई ज़्यादा कामयाबी, ज़्यादा उस पर सफलता हासिल नहीं हुई। और 2013 में जो हमने बेसलाइन सर्वे करवाया झारखंड के बारे में, ग्रामीण झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ 28.02% ही हाउस होल्ड ऐसे थे जहाँ टॉयलेट्स का प्रावधान था।
जबकि राष्ट्रीय स्तर पे ये संख्या 40% से भी ज्यादा बढ़ी थी, जो हमने बेसलाइन सर्वे राष्ट्रीय स्तर पे करवाया। थैंक यू। और थैंक यू, प्लीज। इसीलिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि एमपीज का जो एमपी लेड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो आपकी मर्जी। आप 5 के 5 करोड़ इन पे लगा दो, आपको कोई रोकेगा नहीं नहीं गुप्ता जी, नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस। श्री संजीव कुमार, नहीं, आई एम सॉरी, इट्स ओनली अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, वी हैव टेकन मोर देन 5 मिनट्स ओवर इट, प्लीज सिट डाउन। नहीं प्लीज आप पूछिए सर प्लीज सर नहीं प्लीज सर प्लीज डोंट टेक द टाइम ऑफ योर कॉलीग। No, no. Sir, if you are not satisfied with the answer, take it up with the minister. सर भाई ये that's a separate question, नरेश जी. Please, please, please. वो that's a separate matter. सर नहीं आप बैठ जाइए प्लीज। सर मैं झारखंड के कोयलांचल से आता हूँ जी, जहाँ पर माइनिंग किया जाता है कोल का और मिनरल का, और रात दिन माइनिंग करने के प्रोसेस में और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में इतना पोल्यूशन होता है कि लोग मर रहे हैं। सवाल पूछिए। हाँ, पोल्यूशन के सर एक सेकंड, नहीं मुझे आलाप की जरूरत नहीं है। में जितने भी वाटर रिजर्वॉयर हैं सब जो है सो पोल्यूट हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं। तो मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है कि जो निर्मल भारत जो है अभियान को जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, इस मिशन के तहत क्या आप कोयलांचल में जो है सो पाइप लाइन जो है सो पाइप्ड वाटर का व्यवस्था कर रहे हैं? थैंक यू। प्लीज बी ब्रीफ विद द आंसर। ब्रीफ तो ये है कि ये जो पूछ रहे हैं वो ड्रिंकिंग वाटर का पूछ रहे हैं और सवाल है सैनिटेशन का। थैंक यू, ये थैंक यू वेरी मच। इससे ब्रीफ तो और कोई हो नहीं सकता। थैंक यू। डॉक्टर अनिल साहनी ऑन झारखंड से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जो आपने 1/4/2012 से 1/10/2014 तक कार्यक्रम चलाए बंद कराए, क्या इतने दिनों में झारखंड का और झारखंड के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी का स्वच्छ हो चुका है, या जो आप नया अभियान करने जा रहे हैं उसके अनुसार कब तक वहाँ का स्वच्छ होगा और कब तक निर्मल होगा, इसकी जानकारी दें। सर, झारखंड में जो स्कूल टॉयलेट्स की बात कही है, शौचालयों की स्कूलों में 2011-12 में 1228 स्कूलों को ये सुविधा दी गई। 2012-13 में 613 स्कूलों में शौचालय बनाए गए और 2013-14 में 682 और 2014-15 में 12 मार्च तक 2014-15 की 12 मार्च तक के आंकड़े मेरे पास हैं। 1361 स्कूलों में ये शौचालय बनाए गए। थैंक यू। क्वेश्चन 183। यस, ऑल राइट, लेट द आंसर बी गिवन। 183। Sir, A, B and C, a statement is laid on the table of the House. Supplementaries, please. Beg your pardon, sir. I'm quite nervous. It's for the first time I'm asking question in this house. Sir, through you, I would like to ask Honorable Minister that out of the total sanction of 842 crores in this financial year of 2014 and 15, my state Odisha has received only 565 crores. So proposal for the second installment has already been provided, yet we haven't received, sir. Sir, I would like to ask, by when will the rest of the amount be received by Odisha so that this program continues without any delay? सर, इंदिरा आवास योजना का उड़ीसा स्टेट का जो लक्ष्य था इस साल का,
वो 3,87,000 3 साल के अंदर ये तय हुआ था कि 3 साल में 3,87,000 घरों को इंदिरा आवास योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। और उसके लिए जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि हमने जो अमाउंट सैंक्शन किया था वो ये कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं आया। बहुत सी ऐसी प्रोसीजरल चीज़ें हैं जिसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है। और दूसरा सभापति जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा आवास योजना का पैसा सिर्फ स्टेट पे नहीं जाता, स्टेट से वो डिस्ट्रिक्ट्स को जाता है। और डिस्ट्रिक्ट्स में कई डिस्ट्रिक्ट तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कई डिस्ट्रिक्ट उसमें बहुत पीछे होते हैं। तो उनका जो अनस्पेंट जो पैसा है वो दूसरा जो ज़िला जिसने अच्छा काम किया है, हमने ये अब गाइडलाइंस जारी की हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल जहाँ दूसरे ज़िले में जहाँ अच्छा कार्य हुआ है आप वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें अगर टारगेट पूरा होगा, क्योंकि इसमें सारे का सारा जो टारगेट निर्धारित है, हम ये चाहते हैं कि एक स्टेज पे तो ये इनका जो टारगेट था वो 2014-15 में 1,61,000 था और अभी तक सिर्फ 7,000 हाउसेस की रिपोर्ट हमारे पास आई है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर दूसरे जिलों से भी रिपोर्ट आएगी तो हम पैसा रिलीज करने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। Second question. Sir, I'll see to that the rest of the requirement by the central government will be provided to them very soon. But I believe it शायद provide किए गए होंगे anyways. So my second question is, in this, I am from Odisha and we have 31 lakh kacha houses. It's we are really unfortunate that we have so huge volume of kacha houses in Odisha. And for this reason, my Honorable CM had requested in this last Niti Aayog meeting that at least there was a request for at least 5 lakh kacha houses, 5 lakh houses to be sanctioned for this coming year, 15th and 16th, this running year. So, but in the last 3 years, only 3.87 lakh houses were sanctioned. So, when there is a huge demand of, there is such a big volume of 31 lakhs, and in the last 3 years, only 3.87 lakhs houses have been sanctioned, how is it possible to provide good house to stay? How these poor people are going to face? Thank you. So, I request the Minister to please answer this. Sir, this question is not of relating to Odisha only. There are about 2 crore 95 lakh families which are deprived of this, that they are not having any shelter. So we have moved the finance department regarding this, and there is a proposal for 73 lakh houses for which we have moved the center for extra funds. And there is a Prime Minister is also very much concerned of this, that by 2022 there should not be any family which is without shelter. So it's a huge program, and it requires not in thousands but in lakhs, the lakhs of crore of rupees. But as far as Odisha is concerned, we have placed at their disposal 2,623 crore in the last 3 years, sir, and utilization has been only 2,185 crore only. So that means the targeted which they fixed, they have the amount with the respective districts. And as I have already answered in my first reply, thank you, that there is no dearth of
funds as far as funds for Odisha is concerned. Thank you. Shri Ranjiv Biswal. Sir, I would like to know from the minister through you, sir, due to widespread corruption and irregularities, the Indira Awas Yojana in Jagatsinghpur district of Odisha has been suspended for 2 years now. So I would like to know if the minister is aware of it, has a probe been begun, and what measures he has taken to help the beneficiaries. Sir, because the funding pattern is such that we provide 75% and the rest of the amount is provided by the state government. And implementation is, by and large, it is the state responsibility. But still, whenever we get any of such information where the funds are not being utilized properly, or there has been something wrong with the utilization of the fund, the corruption element is there, then... And does the minister is aware of it? Just a minute, please. As far as this district is concerned, I don't have any information, but still I can say if there is any such information which is available with you, certainly we would ask the state government to go for it. Thank you, Shri Bhupender Singh. सर, जैसा कि ये सारा सर सांसद राज्यसभा के सभी मेंबर सर एक होंगे इस मत पे कि ये जो इंदिरा आवास योजना पक्का घर बनाने के लिए जो सबको देने की जो बात की जा रही है, क्या ये सच्चाई है कि जो रेट हैं इंदिरा आवास के जो फिक्स किए हैं अब घर बनाने के लिए 75,000 फॉर नॉर्मल एरिया और जो हिली एरिया में 90,000, तो ये बहुत कम है, ये महसूस कर रही है सारा हाउस। सरकार इसके ऊपर गौर करेगी क्या और इसको 1,50,000 रुपए तक इसकी वृद्धि करेगी? और 11 डिस्ट्रिक्ट सर जो फाइलिन के 1,09,000 घर के लिए जो उजड़ गए हमारे उड़ीसा में ड्यूरिंग फाइलिन, वो घर आप उसके लिए स्पेशल सैंक्शन कुछ करेंगे क्या इंदिरा आवास में? थैंक यू। मैंने सभापति जी पहले भी बताया कि ये अमाउंट पहले सिर्फ 40,000 रुपये होता था, अभी पिछले साल ही इसको 40,000 से 70,000 किया गया। और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उनमें इसको 75,000 रुपये तक किया गया। और मैं खुद इस बात को मानता हूं कि ना 70,000 से कोई अच्छा मकान बन सकता, ना 75,000 से। और सही मायनों में हमने ये प्रपोजल भी दी है कि कम से कम 1,15,000 रुपया अगर किसी को दिया जाए और उसमें भी उसके जो उसका प्लॉट है उसका साइज भी हमने 25 स्क्वायर मीटर करने का फैसला लिया है, ताकि 25 स्क्वायर मीटर अगर प्लॉट होगा तो कम से कम वो एक जिसको हम घर कह सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कमरा बोलना या रूम, बल्कि घर कहने लायक तभी बन सकता है। और मैंने जैसे कहा कि एक बहुत इस स्कीम को हमने वित्त विभाग को, वित्त मंत्रालय को भेजा हुआ है और जो ही इस पे कोई स्वीकृति आएगी तो हम हाउस को इसकी सूचना जरूर। प्लीज 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 श्री दिलीप तर्के प्लीज। सर, आपका माध्यम से मैं मंत्री महोदय जानना चाहूँगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है इंदिरा आवास योजना 14-15 का, जो भी फंड है 14-15 का बिना कटौती करके देने के प्रयास करेंगे क्या? उड़ीसा की पूछ रहे हैं आप? 14-15 में सर, चेयरमैन सर, 14-15 में उड़ीसा के लिए 876.93 पैसा मंजूर किया था, एलोकेशन की थी। और अभी तक हमने 684.03 करोड़ रिलीज कर दिया है और इसकी यूटिलाइजेशन
जो है वो 60.66 इसका यूटिलाइजेशन इसका अभी राज्य सरकार ने कर लिया है। और मैंने जैसे कहा कि बहुत से ज़िलों में जहां काम धीमा है या नहीं हो रहा, उन ज़िलों को भी जो अनस्पेंट जो पैसा वहां है, हमने ये गाइडलाइन जारी की हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि वो दूसरे ज़िलों में अगर काम अच्छा हो रहा है तो उस पैसे को वहां खर्च सकते हैं। Question 184. Let the answer be given. Sir, a statement is laid on the table of the House. Supplementaries, please. Supplementaries. Yeah, thank you, Chairman, sir. The reply given by the Minister mentions that against the target of 22,520 kilometers road length, construction under RRP 2, a total of 11,092 has been completed till 31st of January 2015. That means around 49% of the target has been achieved. May I know from the Minister what are the reasons for this slow speed of construction? In the table which has been submitted, for Maharashtra, length of the roads completed during 2011-12 was 2592 kilometers. That has come down to only 448 kilometers in the year 2013-14. Could I have a reply from the Minister? Thank you. सर, महाराष्ट्र में जो 1000 से ऊपर की हैबिटेशन है, उनकी संख्या 197 थी और 500 से ऊपर की हैबिटेशन 988 हैं और 250 और उससे ऊपर 974। इस तरह से 2159 हैबिटेशंस को हमने 2015 में 2159 में से 1178 हैबिटेशन पे काम पूरा कर लिया है। और जैसे मैं, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया हुआ था, इसके तहत जो डेडलाइन है वो मई 2016 है, नवंबर 2015 तक का हमारा टारगेट है और उसके 6 महीने के और समय में हमें वो काम सारे पूरे करने होते हैं। तो हमने ज़्यादातर, मैं ये कह सकता हूं कि हम अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे। अभी तक हमने 1178 हैबिटेशन को पे काम पूरा किया। Thank you. Second supplementary. Thank you, sir. May I know through the from the Minister that are we using any kind of innovative construction material like plastic waste for the construction of village roads? This experiment has been done and it has been successful in Madhya Pradesh. If we happen to use this, I mean, construction of the roads, the quality would be better. And secondly, that if we have we consulted the experts in this field for locally available this construction material which is safe, One question, please. cheap and erosion of free of qualities. Could Minister shed some light on this? Please answer one of the two questions. Sir, the first question is that is there any technology which can be applied or which can be used for the construction of these roads? Sir, first thing which I would like to tell that the specification for PMGSY stage 2 is of very high order, and I have, when I took over as Rural Development Minister, I asked the ministry that this type of specification is not needed on those roads
where the volume of traffic is not that high, and even in the next 5-10 years, the volume is not going to increase in such a way where volume can be one of the factor. So that's why I have asked them to reduce the specification and to see that in that process we would be able to have more length to be covered, more kilometer to be covered. And the second thing is we are using not only one technology but 3 or 4 technology. And as you have mentioned about the plastic, in some of the states where the sandy land is there, this practice is being followed, this technology is being implemented, and it is proving very good for the areas like Rajasthan and other states. And thank you. Also in some of the areas, we have developed a technology where the construction used to be completed, and after that the premix was not possible because of either because of the rain or because of the winter season, sir. Now the latest technology which is with us is that in all the 12 months we can have that pre-mixing also on such roads. Thank you, Shri Naresh Gujjar. Agarwal, sorry. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने उत्तर दिया है, उत्तर के खा में उन्होंने 8 राज्यों को अलग श्रेणी में लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि 1400 मिलियन अमेरिकन डॉलर अलग से 8 राज्यों को प्राप्त हुई। तो मैं मंत्री जी पहले आपसे जानना चाहता हूं कि इस योजना में कितनी आबादी तक के सारे गांव को आप जोड़ना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश का आपने जो देखने जो फिगर दी है, 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश में रोड की लंबाई बहुत कम है, तो 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश को आपने कितना रुपया अलॉट किया, यानी राज्य ने कितना मांगा था, आपने कितना अलॉट किया और कितना रिलीज? थैंक यू सर। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि हमने 2 लोन लिए वर्ल्ड बैंक से। एक हमारा जो हमने जिसकी रीपेमेंट भी हो गई है और उस पे काम भी ख़त्म हो गया। दूसरा हमने जो लिया है उस पे जैसे मैंने माननीय सदस्य को जवाब दिया महाराष्ट्र से कि उस पे 49% काम हो चुका है। आपने पूछा कि क्या कितनी हैबिटेशन इसमें कवर हुई। हमने जो सर्वे हुआ, जो बेसलाइन सर्वे था, उसमें 1,78,184 देश भर में ऐसी हैबिटेशन थी जहां सड़क की ज़रूरत है, और उसके लिए जो पैमाना था वो ये है कि प्लेन का एरिया, मैदानी अगर इलाका है तो वहाँ 500 से ज़्यादा की आबादी होनी चाहिए, और अगर हिली एरियाज़ हैं जिसमें उत्तराखंड भी है, जिसमें हिमाचल भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, उसमें 250 तक की। कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हैं, उनके अंदर हमने बल्कि उसको 100 तक की संख्या पे पहुंचाया। और यही नहीं, उनके अंदर मल्टी कनेक्टिविटी की भी बात हमने सोची, क्योंकि ये एक शिकायत आ रही थी कि अगर आप उन एरियाज को जहां नक्सलवादी एक्टिविटीज हैं, उत्तर प्रदेश का मैं बता, उत्तर प्रदेश का मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो सिर्फ 9 राज्य हैं जो स्टेज 2 में आए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। इसका मतलब ये है कि उस राज्य की प्रगति औरों से ठीक रही है, तभी वो उस स्टेज पे आया। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक 2000, आप टोटल जानना चाहेंगे? राज्य सरकार ने जो अपना प्रपोजल भेजा वो कितने करोड़ का था, कितने गांव का, कितने करोड़ का था, और आपने कितना रिलीज किया, जो बचाव कब रिलीज कर देंगे? बस सीधा सीधा देखिए, उत्तर प्रदेश में 2014-15 में 580 करोड़ रुपया
रिलीज हुआ है और अभी तक 10,921 करोड़ रुपया, जब से ये 1985 से PMGSY 2001 से ये स्कीम चली है, तब से लेके आज तक उत्तर प्रदेश को हमने 10,921 करोड़ रुपया रिलीज किया है। और जैसे मैंने कहा आपको कि जो फेज 2 में है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमारे को। हम ये चाहते हैं कि फेज 2 की मांग आए और बहुत से सांसद महोदय जो थैंक यू नरेश जी, इट इज नॉट अ डिस्कशन, प्लीज जस्ट टेक द आंसर। मैं यही आपको बता रहा हूँ नरेश जी प्लीज, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि हमारा PMGSY में अब भी हमारी जो फंडिंग का जो है वो संतोषजनक है। बहुत से मदों में शायद कमी आई है कहीं कहीं, लेकिन PMGSY के अंदर हमारा, और हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हम इस कोशिश में भी हैं कि इस काम को, क्योंकि PMGSY में स्टेज 2 में 50,000 किलोमीटर सड़कों की अपग्रेडेशन की बात है। प्लीज नरेश जी प्लीज, अधिकारियों को बुला, नरेश जी प्लीज लेट मी गेट ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पहले हमारी सुन लें, फिर अधिकारियों के बुलाने की नौबत आएगी। अभी 3 दिन पहले आपके जो सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट के, वो मेरे पास आए थे और सिर्फ अधिकारियों की बात नहीं, मैंने ये योजना बनाई है कि उत्तर प्रदेश के जितने MP हैं और जितने उनकी नोडल एजेंसी से संबंधित अधिकारी हैं, उनकी एक मीटिंग लखनऊ में और दूसरी मीटिंग नोएडा में हम करेंगे। और जितने PMGSY की सड़कें हैं, क्योंकि बहुत से सांसद महोदयों का ये कहना है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ हम किसी सड़क को बोलते हैं, मंजूरी किसी की होती है, सरकार किसी को बनाती है। तो इसलिए इस सारे को एक सामंजस्य बिठाने के लिए हम 2 मीटिंग जल्दी ही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं को पैसे की कोई बात नहीं रहेगी। Respected Chairman, besides water resources, today is the day of rural development. Between 2004 and 2014, under the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singh ji, UPA government has enabled to construct 3,90,000 kilometers of the rural roads under the projects. And Union Minister for Rural Development is gracious enough to record that between 2011 and 2014, above 80,000 kilometers of the rural roads have been constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Under 2 projects. What is the question? Yes, sir. I am coming to that, sir. Please. Rural roads projects 1, rural roads projects 2 have been taken up, and under rural roads projects 2, out of the targeted 7,631 habitations, the target has been exceeded and taken to 107%, that is 8,212 habitations have been connected. After this, what is the question? Yes, sir. Sir, by Mr. Apollo, why can't you ask a question without a speech? Sir. To that only I am coming, sir. Kindly, sir. See, by November 2015, this rural roads projects 2 is to get completed. Whether Union Rural Development Ministry has assessed whether there is still any remaining unconnected rural habitations to take up rural roads projects 3. Thank you. Thank you, sir. Sir, if I understand the question of honorable member correctly, he is keen to know that is there any proposal for 3rd phase. So my submission is that this can be only analyzed when we meet our target in phase 2. And the second thing is, you have mentioned that only 3 lakh kilometer road have been constructed under PMGSY, but the latest information is that the work completed is on 4,26,560
1 kilometer of roads, and the amount so far incurred is 1,26,355 crore. So, sir, I can say that this is one of the scheme which has given very good dividends to the rural masses because of the connectivity, and as we are thinking of that these total habitation which is 178,184. This is based on 2001 census. Sir, there is a demand from the states that instead of 2001 census, we should go by 2011 census. So this we are gathering the information from all the state concerned, and we would see that if more work is to be completed, even after gauging the 2011 census, then certainly we may have to revisit the entire scheme. Thank you, Shri Avinash Rai Khanna. धन्यवाद सर। पहले मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सदन के सामने रखी। सवाल पूछ लें जल्दी से। मेरा सर PMGSY जो योजना है, इसका बहुत से प्रदेशों को, बहुत से लोगों को लाभ हुआ है सर। एक ही प्रदेश में अलग अलग तरह की एरियाज होते हैं। जैसे मैं पंजाब से हूँ, मानने में आएगा कि पंजाब प्लेन एरिया है, लेकिन जिस मैं जिले से हूँ वो एक हिली एरिया है। तो मेरा मंत्री से निवेदन है कि क्या जैसे समय समय पर मांग को देखते हुए इन्होंने पॉपुलेशन का जो कैटेगरी वाइज कम किया है 1000 से 500, क्या इसको और कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ऐसा कुछ आगे योजना बनाएंगे? और जो सड़कें बन चुकी हैं उनकी रिपेयर का कुछ करने की योजना है कि नहीं? थैंक यू। As far as repair is concerned, states are allowed to spend 25% of the amount if any major repairs are required in the different states. Loudly, please. That I have already explained that there is a strong demand from all over the state that let there be 2011 census should be the benchmark. So on that we are getting information. I am still to get information from so many states. When I would be able to have the complete information, then certainly we will take note of this. Thank you. Question 185. चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से Let the answer be given. स्टेटमेंट बटल पर रखा है। हाँ, आप पूछिए। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में वर्तमान नीति के तहत कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हुई है? क्या सरकार को इस वर्तमान नीति से नुकसान हुआ है जिस कारण सरकार नई नीति बनाने जा रही है? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, टोल पॉलिसी पर हर समय विचार होता है। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि टोल पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सहूलियत कैसे दे सकेंगे, और इसलिए इसमें डिपार्टमेंट में हमने काफ़ी विचार किया है। इसके बारे में एक प्रस्ताव भी डिपार्टमेंट के विचाराधीन है। इसके बाद में हम लोग आदरणीय कैबिनेट और प्रधानमंत्री जी की अनुमति लेने के बाद इसके बारे में घोषणा कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार की परेशानियों को, अनेक प्रकार की परेशानियों को देखते हुए ये नीति बदली जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो टोल पोस्टों के कारण यात्रियों को परेशानी होती है और कई बार लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है और कभी कभी तो किसानों की भी ज़मीनों की बात पैदा होती है, क्या ये सभी शंकाओं को देखते हुए माननीय मंत्री जी क्या सरकार टोल पोस्ट खत्म करने के लिए विचार करेगी? सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही संसद में घोषणा की है। 62 टोल बूथ को हमने अभी कैंसिल कर दिया है
और 100 करोड़ रुपए से जो कम लागत के जो काम है वो जो पीपीपी मॉडल में उसको भी कैंसिल करने के बारे में हम सोच रहे हैं। दूसरी ओर जो टोल बूथ है उसको अभी ई टोल चालू कर दिया है। हमारे 390 टोल बूथ है, उसमें से करीब 180 बूथ अब ई टोल में आए हैं और आप बैंक में पैसे भर के स्टिकर केवल आपके गाड़ी पर रहेगा, जिससे अब आपकी तकलीफ कम होगी और आपको कोई अड़चन और समस्या नहीं होगी। Question hour is over. House is adjourned till 2 p.m.